A very good morning to all my dear students. Let's continue the process of learning, and today we are going to enter in the lecture number 3 of the same chapter, Theory of Demand, and we are going to discuss explanation of law of demand. In the previous lecture we have studied that what is law of demand. Law of demand states that there is an inverse relation between price and quantity demanded. That is, with increase in the price, the demand contracts and vice versa. So what is the reason behind it? Why it happens? So we are going to explain it on the basis of the two laws of the consumer's equilibrium. One is the single good case when MU is equal to price, other is a two goods case. So first of all we are going to explain the law from the angle of the single good case when MU is equal to price. So on the basis of MU is equal to price, what is this? We know consumer will purchase where the marginal utility but the benefit which he gets must equal to the price which he or she pays for it. Suppose the price fall. When the price falls, what will happen? MU is equal to price. Suppose the price falls. Now MU will be greater than price. When MU will be greater than price, it means he or she is getting more benefit than what he or she is paying. It will induce him to purchase more. फिर से ध्यान से सुनो, हिंदी में बता रहा हूँ. जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा तो MU प्राइस के बराबर होगा. देखो वो यही कह रहा है, MU इज इक्वल टू प्राइस. सपोज कि प्राइस गिर गया, देयरफॉर इट बिकम्स लोअर देन MU. अब MU ज़्यादा हो गई और प्राइस कम हो गया, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी. MU इज ग्रेटर देन प्राइस. सिंस MU इज ग्रेटर देन प्राइस, इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू परचेज मोर, एंड हेंस प्रूव्ड दैट विद फॉल इन द प्राइस द डिमांड एक्सटेंड्स एंड वाइस वर्सा. जब उसको प्राइस जो है कम देना पड़ रहा है, MU ज़्यादा मिल रही है, तो वो ज़्यादा परचेज करेगा, और जब ज़्यादा परचेज करेगा तो उसकी MU गिर के प्राइस के बराबर हो जाएगी. तो ये बात प्रूव हो गई कि प्राइस के गिरने से डिमांड क्यों बढ़ती है. अब दूसरी चीज़, हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन सेकेंड लॉ पढ़ा था हमने, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में पढ़ा था. अब इस लॉ के हिसाब से कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा? व्हेन द रेशियो ऑफ MU ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू MU ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y. रेशियो ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल, ये आपने कंडीशन पढ़ी थी. अब मान लो ये रेशियो है, सपोज दिस इज द रेशियो, एंड प्राइस ऑफ x फॉल, प्राइस ऑफ x गिर गई. अब क्या होगा? नाउ MU ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x विल बी ग्रेटर देन MU ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y. अब उसको किससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है? x से, क्योंकि उसकी प्राइस गिर गई है. सो व्हाट विल हैपन? Automatically consumer will purchase more of good X. Hence it is proved with fall in the price the demand rises, and with increase in the price the demand falls. So this is the two angles to explain this law. Next topic we are going to do is why is the law of demand applicable. पहले इसका मीनिंग समझ लो, फिर मैं टॉपिक शुरू करूंगा. क्यों लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है? इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपन्स? इसके पीछे 5 रीजंस हम पढ़ेंगे. तो एक एक करके इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम और प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो जाती है. सो द फर्स्ट रीजन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज substitution effect. What is substitution effect? Two goods, tea and coffee. When the price of tea will increase, what will happen? The demand for coffee will increase. It means with increase in the price of tea, the demand for tea falls, and the substitute of tea, coffee, the demand for coffee will increase. So this is the first point. When the price of the given good fall, it becomes relatively cheaper as compared to its substitute. As a result, the demand for the given good rises. It proves the fact that with fall in the price, the demand rises and vice versa. इसको हिंदी में सुन लो. चाय और कॉफ़ी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है.
जब चाय महंगी हो जाएगी तो उसका सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, लोग कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब चाय के महंगे होने से उसकी डिमांड गिरेगी और उससे रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूट उसका है कॉफ़ी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये बात प्रूव हो गई कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, यानी इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अब हम सेकंड बात समझेंगे। सेकंड है लॉ ऑफ DMU। ये तो मैंने आपको अभी बताया है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहती है लॉ? ये लॉ कहता है जैसे जैसे कंज्यूमर किसी चीज को ज्यादा लेगा उसकी MU कम हो जाएगी। जैसे जैसे किसी चीज को कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। अब एक बात बताओ, कंज्यूमर किसी चीज को कब तक कंज्यूम करेगा? जब तक उसकी MU प्राइस के बराबर नहीं होती। अब वो किसी चीज को ज्यादा लेगा तो उसकी MU गिरेगी। तो ज्यादा कब लेगा? जब प्राइस भी गिरे और MU के बराबर हो जाए। तो ये बात प्रूव हो गई कि कम प्राइस पर ज्यादा और ज्यादा प्राइस पर वो कम लेगा। देखो सेकंड पॉइंट यही है, इट स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल्स, सो ही विल बी रेडी टू परचेज मोर if its price also falls and becomes equal to MU. Hence it is proved that with fall in the price the demand rises and vice versa. थर्ड चीज है बेटा रियल इनकम इफेक्ट। क्या होती है रियल इनकम? मैं अपनी मनी इनकम से कितनी गुड्स परचेज कर सकता हूं। एक पर्सन करनाल में रह रहा है और एक दिल्ली में रह रहा है, दोनों की इनकम 20,000 पर मंथ। तो रियल इनकम किसकी ज्यादा होगी? जो करनाल में रह रहा है, क्योंकि करनाल में चीज़ें सस्ती हैं कंपेयर टू दिल्ली। तो इसलिए यहाँ पर उसको किराए का मकान अगर लेना पड़ेगा तो आसान है, उसको नॉर्मल उसमें भी वो खर्चे में करके मैनेज कर लेगा। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ उसका खर्च भी ज़्यादा होगा। तो ये बड़ी क्लियर सी बात हो गई कि रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम। अब मान लो मेरे पास 100 रुपये है, मैं लेके मार्केट में गया और मुझे 2 पेन परचेज करने थे। 2 पेन्स आई हैव टू परचेज, जिनकी प्राइस थी 50 रुपीज़ ईच। मैं मार्केट में गया, मुझे पता चला 50 वाला पेन 25 रुपीज़ का हो गया, तो मेरी तो लॉटरी निकल गई। मैं अपने 100 रुपये में 4 पेन्स लूँगा या 2 पेन लेके उसके साथ 50 रुपये की अपनी कोई चीज़ ले लूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज and he or she can purchase more of the goods. Therefore it is proved with fall in the price the demand increases or with rise in the price the demand fall. ये देखो यही वो कह रहा है, when the price of the given good fall it increases the purchasing power of the consumer. Purchasing power को क्या बोलते हैं? real income. As a result he can purchase more of that good with same money income, hence proved with fall in the price the demand rises or extends and vice versa. Additional consumers, जब कोई चीज महंगी होती है तो कुछ थोड़े से चुने हुए लोग उसको लेते हैं, सिलेक्टिव फ्यू परचेज दैट गुड। पर जब वो सस्ती हो जाती है तो जो पहले उसे नहीं ले सकते वो भी उसको लेने के काबिल बन जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने आप ही जो डिमांड है इंक्रीज हो जाती है विद एडिशनल कंज्यूमर्स, विद न्यू कंज्यूमर्स। तो प्रूफ क्या हुआ? प्राइस के कम होने से डिमांड एक्सटेंड होती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। देखो अब यही पढ़ रहे हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल मैनी न्यू कंज्यूमर हु वर नॉट इन द पोजिशन टू बाय इट अर्लियर स्टार्ट परचेजिंग इट, हेंस इट इज प्रूव्ड विद फॉल इन द प्राइस द डिमांड एक्सटेंड्स एंड वाइस वर्सा। और लास्ट है डिफरेंट यूजेस ऑफ द गुड। इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, हमारे को पता है कितने सारे इसके डिफरेंट यूजेस हैं। मनी के भी बहुत सारे यूजेस हैं। जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो हम उसको सिलेक्टिव यूजेस में यूज़ करते हैं, मोस्ट अर्जेंट यूजेस में यूज़ करते हैं। और जब वो सस्ती हो जाती है तो हम उसको लीस्ट अर्जेंट में भी यूज़ करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हुआ? महंगे होने पर डिमांड कम, सस्ता होने पर डिमांड ज़्यादा। देखो some goods like milk, electricity have several uses, some of which are more important than others. When the price of such good falls, the consumer uses it to least
इंपॉर्टेंट यूजेस एंड हेंस इट्स डिमांड राइजेस। तो ये हमने जो पढ़ा, वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल, बेटे इसको हम ऐसे भी कह देते हैं, ये ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, यहाँ हम ले रहे हैं प्राइस और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व का स्लोप है, अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं इससे पहले भी हम डिमांड कर्व का स्लोप। डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या शो कर रहा है? जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऊपर से एरो नीचे तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसके 5 रीजंस हमने पढ़ लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड की। इसको समझो, पहले टॉपिक का मीनिंग समझो। एक्सेप्शंस का मतलब होता है किन किन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई या एप्लीकेबल नहीं होता, कब उसकी लॉ ऑफ डिमांड की रेफ्यूटेशन हो जाती है कि वो नियम लागू नहीं होता। ऐसा कौन से स्पेशल केसेस हैं? तो हम इसमें 5 केसेस पढ़ेंगे कि इन केसेस में लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होते का मतलब क्या हुआ? प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, जबकि होना क्या चाहिए, प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो जाए। प्राइस कम हो तो डिमांड ज़्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। विद इंक्रीज इन द प्राइस द डिमांड राइजेस, विद फॉल इन द प्राइस द डिमांड फॉल। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशल केसेस। लुक हियर, एक्सेप्शंस और रेफ्यूटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन, इन्होंने एक पैराडॉक्स बताया कि जब कुछ नेसेसिटी गुड्स की प्राइस बढ़ती है ना, तो लोग उसको उस समय लेना प्रेफर करते हैं, पर जब वो उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग उसे घटिया समझकर छोड़ देते हैं लेना, जैसे ज्वार, बाजरा एटसेट्रा। इसको गिफन्स पैराडॉक्स या गिफन गुड्स कहते हैं। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता। प्राइस के बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। देखो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। These are the special kind of inferior goods on which a consumer spends a large part of his income and their demand rises with increase in the price like jawar, bajra, etc. दूसरी चीज है स्टेटस सिंबल गुड्स। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जीवन में 100 में से 90 काम तो हम देखा देखी दूसरों के लिए करते। अपने जीवन को अपने लिए जी लो। 10% लोग 100 में से ऐसे हैं जो अपना जीवन केवल अपने लिए जी रहे हैं, जो बड़े ही हाई इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको अपने में मस्त हैं, या सेंट्स हैं, ट्रू सेंट्स, या वो लोग जो लाइफ को हर पल को एंजॉय करते हैं, उस मालिक का शुक्र करते हैं। नहीं तो दुनिया को दिखाने के लिए जीवन है, और ये फैक्ट है बेटे। अब यहाँ स्टेटस सिंबल गुड्स का मतलब क्या है? स्टेटस सिंबल गुड्स को बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इसका मीनिंग समझना, हिंदी में कहेंगे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। वो गुड्स जिनका होना हमारे मान सम्मान को दूसरे को दर्शाता है, हमारी मान सम्मान की सूचना देता है। अब गाड़ी का तो असली अर्थ है कि भाई गाड़ी में अपना परिवार 4-5 लोग आराम से, 5 सीटर 5 लोग आराम से बैठ के चले जाएं। अब उसमें मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जब हम ये नाम लेते हैं, नो डाउट ठीक है, होना चाहिए, आप अचीव करो, मेहनत करो और सब कुछ अचीव करो, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन वही बात आ गई, ये अपने लिए नहीं है, ये दूसरों को दिखाने के लिए ही है। क्या? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। अगर कोई कहे कि मर्सिडीज़ की प्राइस हो गई 5 लाख, तो फिर मर्सिडीज़ की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जितनी प्राइस बढ़ती है इसकी डिमांड उतना इंक्रीज होती है, बिकॉज दीज आर द गुड्स विच आर द सिंबल ऑफ स्टेटस इन द सोसाइटी, एंड देयरफॉर द ओनर ऑफ दोज गुड्स दे विल परचेज द गुड्स ओनली व्हेन देयर प्राइस इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो देखो वो यही कह रहे हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इनको हम आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहते हैं। These are bought by the rich people for their prestige and reputation, and their demand increases with increase in the price and vice versa. अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है इग्नोरेंस। हम लोग इकोनॉमिस्ट हैं तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं। ब्रांड हमारा बैंड बजा देता है तो भी हम ब्रांड की तरफ दौड़ते हैं और ये मानते हैं कि जो महंगा है वही बढ़िया होगा। इट इज़ नॉट द फैक्ट। मार्केट में ऐसा फैक्ट नहीं है।
Because of the ignorance, we feel that if the price is too high, the quality is too high, and we always prefer to purchase the high priced goods. But this is not the reality. Therefore, because of the ignorance also, the law of demand is refuted. It is refuted, sorry. So sometimes due to ignorance, consumer feels that if a good is cheap and it is of low quality, hence purchase less of it and vice versa. तो ये हो गया अज्ञानता के कारण से भी हम जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसको नहीं लेते, ये सोचते हैं कि वो घटिया है, और महंगा होने पर ज़्यादा परचेज करते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़रूरत की चीज़ें. अब सस्ती हो जाएंगी तो ये थोड़ी ना कि हम उसी में उनको भर लेंगे लेके घर में, नहीं. शुगर, सॉल्ट, ठीक है, सीरियल, ये सब चीज़ें जितनी ज़रूरत है उतनी लेंगे. इफ़ दे आर टू चीप, इट डजेंट मीन कि हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करने लग जाएंगे. जितना यूज़ चाहिए उतना ही करेंगे, और बहुत महंगी होगी तो भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा नहीं चलेगा. तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. देखो वो यही कह रहा है, इवन इफ द प्राइस ऑफ द नेसेसिटीज इंक्रीज, देयर डिमांड विल नॉट फॉल. देन इज अ फैशन रिलेटेड गुड्स. फैशन इज अ पैशन, और इट्स अ ब्लाइंड पैशन. दुनिया में दिखावा, मैंने कहा ना अभी, तो फैशन वाली गुड्स कितनी भी महंगी हो जाएं, हम उनको परचेज़ करते हैं. और आउट ऑफ फैशन गुड्स हमें फ्री में भी मिले, हम उसको परचेज़ नहीं करते. तो ये भी एक लॉ ऑफ डिमांड की क्या है, रेफ्यूटेशन, यानी उसका एक खंडन है. ये देखो, दीज डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीजेज इवन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन देयर प्राइस. फियर ऑफ शॉर्टेज, डर पैदा हो जाए कि ये चीज़ कम ना हो जाए, तो अगर प्रेजेंट में वो महंगी भी मिलेगी तो भी लेंगे. पता लग जाए कि डीजल या पेट्रोल ख़त्म होने वाला है तो जितना हमारी गाड़ियों में है हम उसको भर लेंगे, और इवन महंगा मिलेगा तो भी ले लेंगे. तो ये क्या हो गया, इट मीन्स द गुड्स वेयर वी हैव अ फियर ऑफ शॉर्टेज, we will demand these goods even at the higher price. So the law of demand is refuted and is not applicable. तो हमने ये डिटेल में पढ़ लिया, 2 रीजंस लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के. उसके बाद हमने 5 रीज़न पढ़े कि वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज़ एप्लीकेबल. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या उसकी रेफ्यूटेशंस हैं. तो ये हमारे तीनों टॉपिक्स डिटेल में कंप्लीट हो गए. और मैं आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रिपेयर योर नोट्स साइमल्टेनियसली. गूगल क्लासरूम पे अटेंडेंस टाइम से ड्रॉप किया करो. इतने आलसी मत बनो कि आपको सारा कुछ मिल रहा है और हम उसको भी ईश्वर के लिए, ईश्वर का धन्यवाद ना करें और बिल्कुल लथार्जिक हो जाएं. मैं बिल्कुल ओपनली आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं बेटे, योर बिहेवियर विल डिसाइड योर डेस्टिनी. होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज अ वर्ड टू अ वॉइस इज सफिशिएंट. God bless you all.